Teachers and participants, I am Priyanka Deshmukh. I welcome you all to the Malvi Mission Teacher Training Program, Dharm Samaj College in collaboration with UGC, MMTCC, Aligarh Muslim University. This is the third day in second session of online NEP 2020 Orientation and Sensitization Program for research scholars of all subjects. As our esteemed resource person for this session, Professor Abdul Rahim Kidwai sir has joined. We all heartily welcome you, sir, for this session. And before you Thank you. proceed for the session, sir, I would like to briefly introduce you, sir. So, dear participants, it is my great privilege, and honor to introduce an eminent scholar, Professor A.I. Kidwai, sir, former director of UGC Human Resource Development Center from UMU. Sir holds many degree and indeed two PhD in English literature and a certificate course in teaching of English as foreign language from Eastern University, UK. Sir has been director of UGC HRDC AMU since 2001 and director of Center for Academic Leadership and Education. Apart from this, sir holds many uh, highly academic positions in university. I would be very brief, sir, as you have said. Apart from this, I would like to give a very as you have that profile. Professor A.R. Kidwai sir has contributed. He has been a prolific writer, seasoned administrator, and a committed teacher. Sir has contributed significantly to educational discourse through his lectures, publications, and academic engagements in both India and abroad. So, sir, we all are fortunate enough to have you with us here, and I extend a warm welcome to you, sir, on behalf of every participants present here. So, sir, I humbly request you to enlighten us and take over this session. Over to you, sir. Thank you. Thank you very much, Dr. Priyanka. First of all, many congratulations to Dr. Surinder Pal Singh ji and to you, Dr. Priyanka, because you are one of us from our own historic Dharam Samaj College, of which we in Aligarh are proud, and it has been my pleasure to visit your college. It is amazing. I was struck how at a small place, physically, I mean, physically small place, you managed to have thousands of students and offer so many courses, useful courses. I had some very good friends there in the Department of English. So it is homecoming to me. And but now I have come to know that your campus has also increased in size. Intellectually, you were big, but now good. Physically, also, you have acquired more space and more campus area. So, right. So, my dear fellow teachers, first of all, welcome to you to this orientation and sensitization program. What I propose to do is मैं आपसे कुछ अपने ऑब्जर्वेशंस शेयर करूंगा ऑफ कोर्स इन हिंदुस्तानी sometimes English also, but mostly in Hindustani or whatever little Hindi I can use. So, देखिए आपने सुरेंद्र पाल सिंह जी की कोऑर्डिनेटरशिप में जो कोर्स ज्वाइन किया है, इट इज कॉल्ड एज ओरिएंटेशन प्रोग्राम. थोड़ा सा ध्यान दें कि ये ओरिएंटेशन क्या होता है. एक्चुअली इंग्लिश लैंग्वेज में ओरिएंट जो है वो एक डायरेक्शन का नाम है. इट स्टैंड्स फॉर द ईस्ट. वो दिशा जिससे सूर्य निकलता है उसको ज्योग्राफी की टर्म में ओरिएंट कहते हैं. और उसका काउंटर पार्ट, उसका अपोजिट जो है वो है ऑक्सीडेंट. OCCIDENT, विच मीन्स द वेस्ट, जिससे सूर्य अस्त होता है. Right. Naturally, we are not concerned with
this geography of East or West. As a metaphor, orientation means, now please listen carefully, Dr. Anand Kumar, जब भी आप कभी कोई ओरिएंटेशन प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, उसका पर्पस, उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको एक दिशा की तरफ ले जाया जाए, एक मार्ग आपको दिखाया जाए। ये आइडिया होता है ओरिएंटेशन का, टू शो यू ए पाथ, ए डायरेक्शन, ए गोल एंड ऑब्जेक्टिव। अब देखिए डॉक्टर प्रियंका, यहाँ क्या है, हमारा गोल क्या है, हमारा मार्ग क्या है, वो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेशनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट which is called as National Educational Policy. Last time it was in 1986. There was I know some revisions in 1990s also, but as an independent policy document, 1986 and today 2020. This document came out in 2020. So after 34 years, so much planning, so much discussion, so much deliberation, so much exchange of views, and then this important policy document from Government of India, from Ministry of Education, from UGC came out, and it is all before us. And we have implemented it, चाहे वो आपका डीएस कॉलेज हो, चाहे देश भर का कोई भी कॉलेज हो, चाहे अलीगढ़ दूसरी यूनिवर्सिटी हो। अब वहाँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो गाइडलाइन है, जो उसने मार्ग दिखाया है, उसी पे हम सब चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं, क्या इसका पर्पस है, वो एक शब्द में वो है नेशन बिल्डिंग, देश को उन्नति की ओर ले जाना, उत्तम बनाना, ये हम सबका कॉमन गोल है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये, जिसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ आप सबको, कि इस पॉलिसी में डॉक्टर प्रियंका, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो या एसोसिएट प्रोफेसर हो या कल आप फुल प्रोफेसर हो, जितने भी टीचर्स हैं उनको इस पॉलिसी में एकेडमिक लीडर कहा गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, ये तो एक डिजिग्नेशन है, जॉब का नाम है। आपका जो कर्तव्य है, आपका जो रोल है, वो क्या है, दैट इज एकेडमिक लीडर। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये जो डॉक्यूमेंट है, इसका यूनिट 3 जो है, उसमें एकेडमिक लीडरशिप की बात कही गई। ये जो भी टाइम मुझको मिला है 90 मिनट्स, इसमें मैं आपसे शेयर करूंगा, आपसे डिस्कस करूंगा, आपको कुछ बताऊंगा, कुछ आपसे भी सीखूंगा कि एकेडमिक लीडरशिप क्या है, व्हाट डज इट मीन, क्या वो क्वालिटीज है जिससे आप एकेडमिक लीडर बनते हैं। एकेडमिक लीडर किसको कहते हैं, एकेडमिक लीडर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, what makes you an academic leader? This is what I am going to discuss with you very briefly, with some examples, with some observations. Naturally, as you can see from my gray hair, I have some experience of more than 40 years teaching. Both I was very fortunate to
work here at Aligarh Muslim University, and also for many, many years in England also. So based on my this first-hand experience, I will share with you what is the meaning of academic leadership, what is this concept, and what does it teach us. तो देखिए ये जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें एक तो ये नोट करने की बात है कि आप सब टीचर्स को, विषय आपका कुछ भी हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैनेजमेंट हो, मेडिसिन, टेक्नोलॉजी, एनी विषय से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप टीचर हैं कॉलेज में, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, तो आप एकेडमिक लीडर, ये तो आपको एक टाइटल मिला है। अब जब टाइटल कोई मिलता है, कोई आपको ऑनर मिलता है, तो उसके साथ साथ कुछ रोल भी आपको करना होता है, आपकी कुछ जिम्मेदारी भी होती है, आपको कुछ करके दिखाना होता है। तो ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अनुसार क्या करना है आपको, वन बाय वन आई विल टेक दिस विद यू। डॉक्टर जे बताएं, समझ में आ रहा है अभी तक आपके? जी डॉक्टर जय, माइक ऑन कर ले। डॉक्टर जय, कैन यू हियर मी? ओके, राइट। तो ये जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, इसके अनुसार एकेडमिक लीडर में 5 गुण होना चाहिए। अब आप ध्यान से सुनिए, ये 5 गुण क्या है और कैसे इनको प्राप्त किया जा सकता है। पहले तो ये गुण है क्या और कैसे हम इन पे कमांड हासिल कर सकते हैं ताकि हम एकेडमिक लीडर बने। सबसे पहली बात जो है, जो कही गई है, जो होना चाहिए, वो ये है, नोट कर लें आप, फर्स्ट एंड foremost quality is communication skills. एकेडमिक लीडर वो है या अच्छा टीचर वो है जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स। अब सवाल ये उठता है, कम्युनिकेशन स्किल का क्या अर्थ है? कम्युनिकेशन इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है। इंग्लिश में जब भी कोई शब्द CO या COM उसमें होता है, चाहे वो कॉपरेशन हो, चाहे वो कोलैबोरेशन हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, उसमें आइडिया होता है टुगेदर का, मोर देन वन पर्सन। कंबाइन, देखिए जिससे वर्ड है कंबाइन, जब भी हम इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब होता है वन, मोर देन वन थिंग विच इज पुट टुगेदर। तो जब भी हम कम्युनिकेशन कहते हैं, तो इसका मतलब है कि आप तो है, सामने वाला भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, उसका भी रोल है। तो माय डियर यंग टीचर्स, प्लीज रिमेंबर, keep in mind
this first point, that being a teacher, being an academic leader requires communication skills. आप अच्छे टीचर नहीं हो सकते, बिल्कुल साफ बात मैं कह रहा हूँ बगैर किसी तकल्लुफ के, आप उस वक्त तक अच्छे टीचर नहीं हो सकते, आप उस वक्त तक एकेडमिक लीडर नहीं हो सकते जब तक आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी ना हो। ये क्या होती है कम्युनिकेशन स्किल, इसका क्या मतलब है, कैसे हम कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाएं। अभी देखिए, मैं आपसे कह रहा था, जब भी हम वर्ड कम्युनिकेशन इस्तेमाल करते हैं, इसकी डेफिनेशन ही यही है कि interacting with other person or persons, singular or plural. मेरी आपसे विनती है कि जब भी आप कम्युनिकेशन करें, उसकी थोड़ी प्लानिंग करें, थोड़ा सोच विचार कर ले। इसीलिए हमारे बड़े बूढ़े, जब आप छोटे होंगे, वो आपको बताते होंगे, मैंने भी बहुत सुना, कि वो बोलने से पहले तौलो, थिंक बिफोर यू स्पीक। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, अभी तक तो ये सब बात जब कम्युनिकेशन की हो रही है, स्पीक और बोलना, कम्युनिकेशन में दोनों चीजें शामिल हैं, स्पीच भी और रिटन भी। और ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि ये अप्लाई करती है हर सब्जेक्ट, चाहे आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स हो, चाहे बॉटनी हो, चाहे नैनो टेक्नोलॉजी हो, सब में कम्युनिकेशन जरूरी है। आपकी मातृभाषा कुछ भी हो, चाहे आपकी मातृभाषा हो या कोई फॉरेन लैंग्वेज यूज कर रहे हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे स्पोकन हो, स्पीच की फॉर्म में हो, चाहे वो राइटिंग में हो, चैट हो, मैसेज हो, एकेडमिक पेपर हो, किताब हो, आर्टिकल हो, whatever, whenever you are expressing yourself, that is communication. तो इस बात को ध्यान में रखिए, कम्युनिकेशन क्या है? एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, चाहे स्पीच की फॉर्म में हो, चाहे राइटिंग की फॉर्म में हो, चाहे वो 1-to-1 हो, अपने दोस्त से, मित्र से बात कर रहे हो, या अपने HOD, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से बात कर रहे हो, या सेमिनार में पेपर प्रेजेंट कर रहे हो, या किताब में चैप्टर लिख रहे हो, whatever form, the form is not so important. इम्पोर्टेंट बात क्या है? वो ये है कि कम्युनिकेशन की स्किल्स क्या है, अच्छा कम्युनिकेशन क्या है, इसको समझिए प्लीज। कम्युनिकेशन है अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपने आइडियाज को प्रेजेंट करना, अपने माइंड को दूसरे के सामने जाहिर करना।
अपने आइडियाज को शेयर करना, ये है कम्युनिकेशन की परिभाषा, कम्युनिकेशन की डेफिनेशन। तो मेरी आपसे विनती है कि जब भी कभी आप कम्युनिकेट करें, कम्युनिकेट करने से पहले थोड़ा सोच, प्लानिंग कर ले, माइंड को सेट कर ले, क्या कहना है, किससे कहना है, कैसे कहना है, कौन सी शब्दावली इस्तेमाल करनी है। These are the important points about communication. अगर ऐसा करते हैं आप, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आई कैन गारंटी यू, यू विल बी द बेस्ट टीचर। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, यू विल हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, यू विल बी सक्सेसफुल। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, यू विल बी respected by everyone. You will be taken seriously by all those around you, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स हो, चाहे वो आपके कलीग्स हो, या कोई भी। ये कम्युनिकेशन के बेनिफिट्स। अभी देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप सब जो है 15 साल, 20 साल, आनंद कुमार जी, आपने कम से कम 15-20 साल स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में लगाए, और ऑन द एवरेज आपको कम से कम 100 गुरु जरूर मिले होंगे। यूनिवर्सिटी छोड़े, जॉब किए हुए आपको आज 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, 10 साल हो गए। कितने गुरु के आपको नाम याद है? 5, 6, 7। बाकी 90 के नाम क्यों नहीं याद है? इसलिए कि वो जो 5-6 गुरु थे, उनका कम्युनिकेशन बढ़िया था। वो ऐसा पढ़ाते थे कि दिल में, दिमाग में उतर जाता था, पत्थर की तरह लिख जाता था। उसके बाद ना नोट्स की जरूरत, ना मेड इजी की जरूरत, ना किसी फ्रेंड के हेल्प की जरूरत। आपके वो विषय समझ में आ जाता। मैं आपको अपनी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे सब भारत में, हमारे देश में सारे माता पिता का एक ही सपना होता है, बेटा बेटी डॉक्टर इंजीनियर बन जाए। मेरे माता पिता का भी था कि डॉक्टर बन जाऊं। साइंस पढ़ा था, बीएससी किया मैंने केमिस्ट्री से। मेडिकल में बैठे ही नहीं, मैं सिलेक्शन भी नहीं हुआ। फिर बीएससी करने के बाद, बीएससी विद केमिस्ट्री मेन एट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, फिर मैंने एमए इंग्लिश ज्वाइन कर लिया, और फिर मैंने पीएचडी टीचिंग। 1975, कितने साल हो गए? 50 साल। 1975 में मैंने बीएससी केमिस्ट्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में हरि नंदन तिवारी जी प्रोफेसर थे फिजिकल केमिस्ट्री। उन्होंने लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ाया। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, एंट्रोपी, इंथैल्पी। आज 50 साल हो गए,
केमिस्ट्री की किताब मैंने भूल के कभी नहीं छुई। क्यों? मेरा करियर ही नहीं था वो। मैं बीएससी के बाद इंग्लिश में आ गया, फिर इंग्लैंड चला गया, पीएचडी की, वहां पढ़ाया, यहाँ पढ़ाया। मगर लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मुझे आज भी याद है। आज आप मुझसे कहें तो अपने बेटे को मैं समझा दूं। क्यों हुआ? कि वो तिवारी जी गुरु ऐसे थे, ऐसे उनकी कम्युनिकेशन स्किल थी कि दिल में, दिमाग में बस गई, रश बस गई। जैसे मेहंदी जो होती है, लग जाती है और उसकी रंग निकल आता है, स्किन जो है, स्किन का रंग बदल जाता है। ये तो गुरु वो होता है कि जो बताए, जो समझाए, पत्थर की तरह दिमाग पर, दिल पर लिख जाए। तो आप देखिए, मैं आपसे ये शेयर करूंगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है, कैसे उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। पहली बात तो ये आप समझ लें कि लाइफ जो हमारी है, इट इज फुल ऑफ सिचुएशंस। लाइफ छोड़िए, एक दिन 24 घंटा जो है, 24 घंटे में भी dozens of, hundreds of situations आती है। Today, 7th August, 5 p.m., you are attending this online program. After 2 hours on 7th August, Dr. Priyanka may be in a birthday party. Dr. Anand Kumar may be at a shopping mall with his wife, shopping for Raksha Bandhan. Dr. Sher Aslam may be having a discussion with his friends. Dr. Nabila may be discussing homework, schoolwork with her children. हर व्यक्ति की अपनी अपनी कोई न कोई एंगेजमेंट हो। सिचुएशंस, सीन्स, सेटिंग्स विभिन्न प्रकार की होती है। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दी बर्थडे पार्टी की, फ्रेंड्स की कंपनी की, फैमिली डिस्कशन की, सेमिनार में प्रेजेंस की। हर सिचुएशन दूसरे से अलग है। काम की बात क्या है, असल बात क्या है, डॉक्टर समीर जी ये समझ लें, जैसी सिचुएशन वैसी भाषा, जैसी सिचुएशन वैसे शब्द, जैसी सिचुएशन वैसे मैनर्स। अब आप 8 साल के बच्चे से डॉक्टर समीर अपने बेटे से जिस तरह से बात करते हैं, वो अपने एचओडी से नहीं करेंगे। एचओडी से जिस तरह से बात करते हैं, उस तरह से आप होटल जाएंगे तो रिसेप्शन पे उस तरह से बात नहीं करेंगे। हमारा बात करने का स्टाइल, शब्द, एक्सेंट, मैनर्स, प्रोनाउंसिएशन सब बदल जाता है।
एक बड़ा महान इंग्लिश लिटरेचर का, सबने आपने सुना होगा, राइटर गुजरा है शेक्सपियर। उसकी बड़ी मशहूर पोएम है कि लाइफ में ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज। ये जो पूरा विश्व है, ये समझिए कि एक स्टेज है और हम सब जो है एक्टर्स, अपना अपना रोल करते हैं। कभी कोई रोल, कभी कोई रोल, कभी कोई रोल, जैसी सिचुएशन होती है उसके अनुसार अपने आप को ढालते हैं। ये नहीं करेंगे तो हम जिंदा नहीं रह सकते, ये नहीं रहेंगे तो हम किसी काम के नहीं। All the world is a stage and all the men and women merely players. प्लेयर्स की तरह है, फिल्म में जैसे एक्टर्स होते हैं। कुछ देर के लिए आप ये हो जाते हैं, कुछ देर के लिए आप ये हो जाते हैं, कुछ देर के लिए ये हो जाते हैं। तो पहला जो अभी जो मैं आपसे कह रहा था, कम्युनिकेशन की ये थोड़ी सी तैयारी करनी, मेंटली अपने आप को प्लान कर ले। तो पहले, सबसे पहले इस प्रश्न का आप जवाब दीजिए, वेयर आर यू। अब वेयर का मतलब जीपीएस नहीं है, लोकेशन नहीं है। वेयर का मतलब है सोशली आप कहाँ पे हैं। डॉक्टर प्रियंका, आप इस वक्त कहाँ पे हैं? 1 घंटे बाद आपका सोशल स्टेटस क्या होगा? 3 घंटे बाद क्या होगा? कल मॉर्निंग में क्या होगा? कल आफ्टरनून में क्या होगा? अच्छा, कुछ सिचुएशन जो होती हैं एक्सपेक्टेड होती हैं, आपने उसके लिए तैयारी की होती है, कुछ अनएक्सपेक्टेड होती हैं। आप कॉलेज आए, अपना लेक्चर ले रहे हैं और इतने में उसमें पंखे में शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लग गई। वही क्लासरूम, वही स्टूडेंट, वही प्रिंसिपल, वही एचओडी, और वातावरण जो है बिल्कुल बदल गया। आग लगी है तो आप जो है जान बचाना जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट हो गया। फायर इंजन आए और कोई किसी की जान खतरे में ना रहे, ये प्रायोरिटी हो जाती है। लेक्चर क्या था वो सब उसको आदमी भूल जाता। तो आप अब सबसे पहले तो अपने आप को खुद ये जवाब दे, वेयर आर यू। फिर इस बात को दोहरा दूं कि वेयर का मतलब ये कोई ज्योग्राफी नहीं है, बल्कि ये है कि आपका उस वक्त रोल क्या है, आपको क्या करना है, आपसे क्या एक्सपेक्टेशन। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात ये, सामने आपके कौन है। अभी मैंने शुरू में आपसे कहा था, कम्युनिकेशन में हमेशा कोई दूसरा भी होता है। एक भी हो सकता है और 50 भी हो सकते हैं और 500 भी हो सकते हैं। मोदी जी को आप देखते हैं, हजारों के, लाखों के मजमे में आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। और जब मौका होता है 1 to 1 बैठ के दूसरे प्राइम मिनिस्टर से, दूसरे मंत्रियों से बैठ के भी बात करते हैं। तो इट मे बी 1 to 1, इट मे बी 1 to 50, इट मे बी 1 HOD। जब आपकी मीटिंग करते हैं तो 40 लोग, 50 लोग को एक साथ कम्युनिकेट करते हैं। प्रोग्राम हो रहा है आपके कॉलेज में,
500 लोग बैठे हैं, बाहर से भी आए हुए मेहमान हैं, कॉलेज के बच्चे बच्चियां भी हैं, आप उनको संबोधित कर रहे हैं। जैसा सामने वाला वैसे ही बात का लेवल। सामने तो खड़ा है मेरा 8 साल की 9 साल की बच्ची, और मैं उससे ऐसी मुश्किल लैंग्वेज इस्तेमाल करूं जिसमें टर्मिनोलॉजी हो, जिसमें टेक्निकल वर्ड्स हो, उसकी समझ में कुछ भी ना आए। आप इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हैं और क्लास में इकोनॉमेट्रिक्स की क्लास है और टर्मिनोलॉजी नहीं यूज करेंगी, आईएमएफ का मतलब नहीं समझाएंगी, छात्राएं कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा कि डब्ल्यूबी वर्ल्ड बैंक क्या है और जीडीपी क्या होता है और आईएमएफ क्या चीज है, कोलेटरल डिपॉजिट्स क्या होते हैं। तो सामने वाला जो है आपके, जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, वैसे ही आप भी बनिए। उसके उसका जो मेंटल लेवल है, जो भाषा वो समझता है, उसी भाषा में उससे बात करिए। कहीं पे हम आप कहते हैं, कहीं पे तुम कहते हैं, कहीं पे तू कहते हैं। अब अपनी स्पाउस को आप करने लगिए तो वो समझेगी कि पता नहीं क्या हो गया है, भंग तो नहीं खा गए। एचयूडी को तू कह दीजिए तो वो सोचेगा कि शो का नोटिस हो सकता है आपको दे दे। बच्चे से तू कहिए, उसको अच्छा ही लगेगा। क्या है? प्यार की भाषा। टैक्सी वाले से कह दिया आपने तू है कौन, वो तो लड़ने मरने पे तैयार हो जाएगा। क्या है? छोटे से शब्द है, आप तुम और तू, मगर दुनिया बदल जाती है। आनंद जी, कुछ समझ में आ रही है? डॉक्टर आनंद कुमार, बताएं। स्पीकर ऑन करिए। ये फोटो ही लगा हुआ है आपका। समीर जी, आप सुन रहे हैं? डॉक्टर समीर, राइट। तो सेकंड पॉइंट वाज हु, किससे बात कर रहे हैं जी। समीर जी का आ गया, समीर चंद्रा जी का जवाब आ गया, थैंक यू वेरी मच। यस, तो समझ में आपके आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। यही पर्पज है कम्युनिकेशन का। देखिए, मैं कम्युनिकेशन पे मैं बात कर रहा हूँ, अगर मेरे ही कम्युनिकेशन सही नहीं है तो फायदा क्या। इसीलिए मैं बीच बीच में आप, नजम साहब आप बताएं। नजमुल, नजमुल पूरा नाम नहीं आ रहा, नजमुल इस्लाम साहब, माइक ऑन कर ले। नजमुल इस्लाम जी, ओके। तो कम्युनिकेशन में पहली बात तो हो गई जी। बताएं नजम, नजम साहब बताइए जी, आपने अब माइक ऑन किया, बताएं, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं सर, आपने कहा माइक ऑन करना, एक्चुअली नाम नजमुल इस्लाम नहीं, नजमुल रफी है शायद, कोई नजमुल ओके, इस्लाम कोई और नहीं। नजमुल रफीक साहब है, चलिए बहुत अच्छा। ये बताएं, बात बात कुछ आगे बढ़ रही है, कुछ समझ में आ रही है? जी जी बिल्कुल समझ में आ रही है सर। ओके, बहुत बहुत खुशी की, बहुत खुशी की बात है। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दी, आप तुम और तू, खेल बिगड़ जाता है। और प्रियंका जी, ये भी याद रखिए, जबान, शब्द और तीर एक जैसे होते हैं। एक बार निकल गए तो
शिकारी करते हैं, ये चोट घाव पहुंचाते हैं। लाख फिर बाद में आप माफी मांगे और क्षमा करें, क्षमा चाहें, मगर जैसे तीर लग जाता है तो घाव ही देता है। तो वैसी शब्द है, अगर सही शब्द नहीं इस्तेमाल किया सही जगह पे तो फिर खेद ही खेद रहेगा, मुंह छिपाते फिर। सर, कहा भी जाता है कि कबान से निकला तीर और जुबान से निकला शब्द वापस नहीं आ सकता, बिल्कुल इसीलिए बहुत वापस, सोच समझ कर बोलना चाहिए। बिल्कुल वापस नहीं आता। बहुत अच्छी सोने सोने में तौलने वाली बात कही आपने। ये इसीलिए मैंने शुरू में आपसे कहा, हमारे बड़े बूढ़े जो थे, जो संस्कार हमको सिखाते थे, तो यही बताते थे, बोलने से पहले तौल लो। तौल का मतलब अब ये नहीं है कि वो तराजू लेके उसको कर रहे हैं, मतलब सोच समझ लो। सोच है, समझा नहीं है आपने तो आज दूसरा आदमी सुन तो लेगा लेकिन समझेगा यही कि ये खिसका हुआ है, इसके स्क्रू ढीले है, ये एबनॉर्मल है। इसीलिए मैंने बात अ, कही थी, अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, यू गेट रेस्पेक्ट। लोग जो है आपको सीरियसली लेंगे। दे मीन दैट नजमुल रफीक साहब जो है ये बात जो करते हैं काम की बात करते हैं। ये डॉक्टर प्रभाकर जी, ये जो है, सर मैं भी कुछ बात कहना चाह रहा था। हाँ जरूर सॉरी सर आप। जरूर 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 कहें आप। सर सर कहा गया है कि बोली एक अमूल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। और बहुत एक जो मध्य भारत जब हुआ तो एक और कहावत बड़ी बड़ी प्रचलित हुई सर कि बात ही हाथी पाइए बात ही हाथी पाँव। तो हम्म, सर बात में तो बहुत कुछ समाहित हो सकता है सर, समाहित हो जाता है, बिल्कुल बातों से बिल्कुल कम्युनिकेशन से ही सब कुछ हो सकता है। सही बात, बिल्कुल बात से जो है दिल जीत भी सकते हैं और आदमी को अपना दुश्मन भी बना सकते हैं यस सर, जी। यस सर, यस सर। तो इस वजह से, इसी वजह से मैं उस बात को बार बार कह रहा हूँ। तो पहला तो इस अपने आप को खुद इस सवाल का जवाब दीजिए, वेयर आर यू, हु आर यू टॉकिंग टू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरा जो है वो भी बहुत ही अनिवार्य है, वो है व्हाई आर यू कम्युनिकेटिंग। प्रियंका जी अभी आपने वो बात बताई, व्हाई, क्यों उसकी जरूरत थी, उससे डिस्कशन आगे बढ़ा, लोगों के दिल दिमाग खुले। और आपको यही नहीं पता कहाँ क्या बात करनी है, जरूरत है नहीं है, तो आपकी बात में कोई वजन नहीं। नो वन विल लिसन टू यू। देखिए मैंने कहा लफ्ज लिसन, दे विल हियर यू, कान में तो उनके पड़ जाएगी लेकिन तवज्जो नहीं देगा। लिसन जब हम कहते हैं तो होता है उसमें ध्यान देना। So my request to all of you is, before you communicate, please answer these questions. Where are you? Who is before you? And number 3, why are you communicating? ये why जो है ये और जरूरी है। क्यों? टीचर में देखिए जितनी क्लियरिटी होगी, जितना क्लियर होगा टीचर, उतना ही सक्सेसफुल होगा। आप हार्वर्ड के पढ़े हुए हैं, 50 किताबें हैं, 100 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हैं, और छात्र छात्राएं समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप कह क्या रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, तो ये आपकी सारी डिग्री, सारे एकेडमिक ऑनर बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बेकार है। उसको तो चाहिए वो बात जो उसकी लेवल की, उसकी समझ में आए।
उससे वो आगे बढ़े, उससे कुछ उसको नए आइडियाज मिले, उसकी क्रिएटिविटी खोले, उसके दिमाग के ताले जो है वो खुले, उसके दिल में ज्योति जागे। अगर ये नहीं है तो वो फिर गुरु नहीं। वो तो जैसे पान वाला जो है पैसे देके पान बेचता है, तो वैसे ही पैसे लेके मैंने लेक्चर दिया, टाटा बाय बाय खत्म। गुरु जो होता है हमारे गुरुकुल वाला, जो हमारी सभ्यता है, वो तो दक्षिणा देता है, कुछ दे के जाता है। क्या देगा वो? कुछ सोना चांदी तो नहीं देगा, लेकिन अभी मैं कह रहा था दिल और दिमाग को रोशन कर देता है, जीने की उमंग बढ़ा देता है, मार्गदर्शक होता है, आगे बढ़ने का साहस देता है। ये होता है गुरु। और कैसे वो करता है? उसके बोली में ऐसी शक्ति होती है, उसके कहने में ऐसा असर होता है कि आदमी की जिंदगी बदल जाती है, सोचने का अंदाज बदल जाता है। तो प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अच्छे टीचर बनना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि जैसे मैं आज प्रोफेसर हरिनंदन तिवारी को 50 साल बाद भी श्रद्धांजलि कर रहा हूँ, आप भी चाहते हैं आपके स्टूडेंट आपको जिंदगी भर भुला ना पाए, उसके लिए क्या जरूरी है कि आपका प्रेजेंटेशन ऐसा हो, मनमोहक हो, ऐसा हो कि जो उनके दिल दिमाग को छूए, उनको ये सोचने पे मजबूर कर दे, उनको आगे बढ़ने का साहस। ये होता है गुरु, ये होता है उसका कम्युनिकेशन। ये तो पहली क्वालिटी। दूसरी क्वालिटी जो इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में कही गई है, आइए उसको भी समझ लें। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के यूनिट 3 में कहा गया है कि टीचर्स जो है एकेडमिक लीडर्स हैं। दूसरी बात क्या कही गई? टीचर्स में कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, जो भी मैंने आपसे डिस्कस किया। और तीसरी बात ये कही गई, अब आप इसको थोड़ा ध्यान दें डॉक्टर अंजलि, डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि टीचर्स में एम्पैथी होना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज एम्पैथी? इंग्लिश लैंग्वेज में ये लफ्ज आया है ग्रीक से। ग्रीक में वर्ड है पैथोस। पैथोस का मतलब होता है फीलिंग। समझिए, अब आपका फ्रेंड है, बड़ा दुख की बात है, उसकी मदर की डेथ हो गई। He is sad. You are his or her friend. You are also sad. ये क्या हुआ? ये हुआ sympathy, same feeling. He's sad. You are his friend. You are also sad. This is known as sympathy, and this is very common. दूसरा वर्ड क्या है? आप सुबह कॉलेज आए, बाइक खड़ी की आपने,
शाम को निकले क्लास लेके, देखा आपने गद्दी जो है आपकी सीट जो है बाइक की, उसको किसी ने ब्लेड से काट दिया। यू फील एंग्री, अनहैप्पी, इसको कहते हैं एंटीपैथी। जिस किसी दुष्ट ने ये काम किया है, you have negative feeling for him or her. निगेटिव फीलिंग को कहते हैं एंटीपैथी। ये जो आपका डॉक्यूमेंट है, इसमें शब्द इस्तेमाल हुआ है इम्पैथी, EMPATHY। इम्पैथी क्या होता है, मैं उसके लिए दो आपको एग्जाम्पल्स हिस्ट्री से, उससे क्लियर होगा इम्पैथी किसको कहते हैं। पहला इंसिडेंट सुनिए। 1910 मोहनदास करमचंद गांधी जी, यंग मैन, अभी महात्मा नहीं बने, अभी यंग है, 30 साल के, इंग्लैंड से लॉ का कोर्स पढ़ के आए। उनके एक जानने वाले गुजराती साउथ अफ्रीका में बिजनेस करते हैं, उनका लीगल केस था। उन्होंने कहा ये यंग आदमी है, अभी इंग्लैंड से बैरिस्टर की डिग्री लेके आया है, इससे कहूँगा कि ये मेरा केस लड़े। उन्होंने उनको साउथ अफ्रीका बुलाया। महात्मा गांधी, ध्यान से सुनिएगा, महात्मा गांधी पहुंचे साउथ अफ्रीका। वो जमाना है, न टीवी है, न इंटरनेट है, अखबार भी बहुत कम है, और अखबार में हर चीज आती भी नहीं। साउथ अफ्रीका पहुंचे, देखा उन्होंने कि देश में तो 99% लोग काले, 1% शायद या उससे भी कम गोरे हैं, और उन्हीं के हाथ में सारी पावर है। और क्या देखा उन्होंने, ट्रेन में वो जा रहे हैं, ट्रेन के दरवाजे पे लिखा है ब्लैक नॉट अलाउड। शाम को टहलने गए, पार्क में बेंच पड़ी हुई है, ब्लैक नॉट अलाउड। चाय पीने वो कॉफी हाउस गए, कॉफी हाउस के दरवाजे पे क्या लिखा है, ब्लैक नॉट अलाउड। गांधी जी फेल्ट वेरी बैड, डिस्टर्ब। आप ध्यान दीजिए, आप देखिए, गांधी जी ब्लैक नहीं, ब्राउन है। गांधी जी साउथ अफ्रीकन नहीं है, वो इंडियन है। गांधी जी वहां रहने के लिए नहीं आए हैं, 15 दिन 1 महीना केस चलेगा, गेस्ट हैं, आए हैं, चले जाए। बट ही हैड इम्पैथी। इम्पैथी किसको कहते हैं, जस्टिस, फेयरनेस, लव फॉर अदर्स। देखिए, मैंने शुरू में आपको एग्जांपल दी, सिंपैथी फॉर फ्रेंड वो तो बहुत कॉमन चीज है, हर एक में मिल जाती है। बट सिंपैथी फॉर स्ट्रेंजर्स, ऐसे जिसको आप में कोई कॉमन चीज नहीं है, उससे भी लव और सिंपैथी होना, किस लिए, जस्टिस के लिए, फेयरनेस के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, इक्वलिटी के लिए, इसको कहते हैं इम्पैथी। We know very well that Mahatma Gandhi was a great personality, so he had empathy. एक एग्जाम्पल और सुन लें आप, और ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि एम्पैथी किसको कहते हैं।
हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो फाउंडर थे सर सैयद अहमद खान, उनके ग्रैंडसन थे मसूद, वो इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए। वहाँ एक गोरा इंग्लिश मैन का दोस्त बन गया। अगर इस कोर्स में इंग्लिश के कोई स्टाफ मेंबर है वो फौरन नाम समझ जाएंगे। उस इंग्लिश मैन का नाम था E.M. फॉस्टर, नॉवेलिस्ट, नॉवेल लिखता था। मसूद अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके अलीगढ़ आ गए। फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन गए। कुछ दिन बाद उन्होंने E.M. फॉस्टर को इनवाइट किया। 1920 E.M. फॉस्टर इंडिया आए। E.M. फॉस्टर कौन है? अभी मैंने आपको बताया, वाइट ब्रिटिश, इज नॉट ए हिंदू, इज नॉट ए मुस्लिम, maybe or may not be, but he is a Christian, but definitely he is not Hindu or Muslim. वो आए इंडिया, यही अगस्त में आए। जन्माष्टमी, कृष्णाष्टमी का त्योहार चल रहा था, बड़ा पसंद आया वो। रात भर बैठ के ब्रिज में देख रहे हैं। बॉम्बे गए, भोपाल गए, हैदराबाद गए, अजंता एलोरा गए, बड़ा पसंद आया। मंदिर गए, मस्जिद गए, किला गए, जो जगह गए, बहुत पसंद आया। मगर उनको पता चला, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मार्च 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग में जनरल डायर, एक वाइट ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर था, उसने इनोसेंट निहत्थे इंडियंस पे गोली चलाई और थाउजेंड्स ऑफ हेल्पलेस, defenseless Indians. He was aghast. He was shocked. और घूमे फिरे वो तो देखा, ये जो गोरे पुलिस वाले हैं, ये तो बिल्कुल अपने आप को भगवान से भी बड़ा समझते, जैसे आजकल ट्रम्प कर रहा है। ये गोरे जो कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, इंडियंस के साथ ऐसा सलूक करते हैं जो आदमी जानवर के साथ नहीं करता। बड़ी तकलीफ, दिल उनका जल गया। लौट के गए इंग्लैंड, वहां उन्होंने एक नॉवेल लिखा, बड़ा मशहूर अंग्रेजी का नॉवेल है। उसका टाइटल है पैसेज टू इंडिया। इस पे फिल्म भी बनी, टीवी पे भी बहुत आया। और उस नॉवेल में क्या लिखा है उन्होंने? द इनह्यूमैनिटी ऑफ द ब्रिटिश, द व्हाइट्स, द क्रिश्चियंस against Hindus, against Muslims, against Indians. ये क्या है? Impact. Because Foster loved human beings without the label of Hindu, Muslim, Indian, Christian, British. He loved human beings. So he did not accept injustice. He did not approve this inhuman treatment.
देखिए आपके लिए क्या इसमें मैसेज, आप टीचर हैं, प्लीज अपने अंदर एम्पैथी डेवलप कीजिए। आप देखिए हमारा देश में महान महान देश है, इसमें डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट रीजन, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट स्टाइल के लोग आपके सामने जो, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक, राइट। आप टीचर हैं, बड़ा महान आपका स्टेटस है। आपके सामने जो स्टूडेंट बैठा है हो सकता है वो नॉर्थ ईस्ट का हो, उसका रिलीजन, उसके कपड़े, उसकी लैंग्वेज, उसका रहने सहने का अंदाज आपसे बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। आप पंजाबी, समझ रहे हैं शेर असलम साहब? तो ये टीचर के लिए, गुरु के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं कि सामने वाले का धर्म क्या है, जाति क्या है, कल्चर क्या है, कपड़े कैसे पहने हैं, और वो तो उसको तो ज्ञान चाहिए, ज्ञान बांटे, उसकी झोली भरी। ये एटीट्यूड जो है, दिस इज कॉल्ड लव फॉर एवरीवन, चाहे उसका धर्म कुछ हो, उसकी जाति कुछ हो, उसका कल्चर कुछ हो, उसके कपड़े पहनने का जो अंदाज हो, उसका जेंडर कोई हो, मेल हो, फीमेल हो, इस सब में कुछ नहीं देना देना। आपका काम है उसका हैंड होल्डिंग, उसका भविष्य बनाना, उसको गाइड करना, उसकी हेल्प करना, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना। ये एटीट्यूड जो है, प्लीज प्लीज स्विच ऑफ योर माइक्स, it is very disturbing. Switch off your mics. समरीन जी अपना माइक स्विच ऑफ कर लें प्लीज। Right. तो आप ये समझ गई एम्पैथी की डेफिनेशन। तो एम्पैथी जो है गुरु का, कोई वो गुरु हुई, वो गुरु उसको कही नहीं सकते जिसमें एम्पैथी, अगर उसमें नैरोनेस, अगर उसमें मीननेस है, तो वो ज्ञान नहीं दे सकता। तो तीसरी क्वालिटी जो है वो एकेडमिक लीडरशिप की पहली क्वालिटी जो है वो तो है कम्युनिकेशन स्किल, दूसरी है एम्पैथी, तीसरी क्वालिटी है ग्रेट। आसिया नाम का मैसेज। ग्रेट कहते हैं फोकस, वेल फोकस। देश को आगे कैसे बढ़ाना है, समाज में कैसे सुधार। आसिया मैम पूछ रही है एक्सटर्नल है इंटरनल है, मैंने बोल दिया इंटरनल है, देखो क्या बताती है। प्लीज स्विच समरीन ऑफ जी योर अपना माइक। माइक स्विच ऑफ कीजिए प्लीज। यस, तो ग्रेट तीसरी क्वालिटी जो
एकेडमिक लीडर में या टीचर में होना चाहिए। मैंने बताया आपको, पहली क्वालिटी तो कम्युनिकेशन स्किल थी, दूसरी एम्पैथी थी, और तीसरी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो है ग्रेट। ग्रेट का मतलब होता है फोकस। बिल्कुल आपकी निगाहें इस पे जमी हुई है कि अपने आप को, अपने कॉलेज को, अपने विश्वविद्यालय को, अपने समाज को और देश को आगे कैसे बढ़ाना, क्यों इसकी जरूरत क्यों है। थोड़ी दुख की बात है, आपको सबको पता है, अखबार में हर दूसरे तीसरे वीक रिपोर्ट आती है रैंकिंग की, जितने भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है उनका स्टेटस क्या है। दुख की बात यह है, सिंगापुर अलीगढ़ से भी छोटा है। सिंगापुर की यूनिवर्सिटी फर्स्ट 100 में। ताइवान नाम भी नहीं सुना होगा आपने। जापान, इजराइल, छोटे छोटे देश, सबके विश्वविद्यालय फर्स्ट 100 200। हमारे 600 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, 80,000 डिग्री कॉलेजेस हैं। एक आध आईआईटी या आईआईएम जो है वो फर्स्ट 500 में आता है, वरना क्वालिटी वाइज आवर एजुकेशन सिस्टम it is sad, but we have to accept that it is behind others. इसके लिए ग्रेट खाली प्रधानमंत्री, खाली शिक्षा मंत्री, खाली यूजीसी, खाली वाइस चांसलर उसके बस की नहीं। सबको मिलजुल के करना है। तो कैसे करना है? ग्रेट के साथ 100% डिवोशन, सिंसियरिटी के साथ। इसीलिए चौथी क्वालिटी और है फोकस। We should be very clear what we have to do. आप कॉलेज आते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, बट ये तो आपका काम ही है। आप ये देखिए, ये जो पीछे लड़का या लड़की बैठा है उसके पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। क्लास के बाद उसको बुलाएं, उसके कंधे में हाथ रखें, पूछे तुम्हें क्या प्रॉब्लम, क्या समस्या है, आर्थिक है, मानसिक है, घर का क्या वातावरण, क्या परेशान। नहीं, सबके प्रॉब्लम तो ना मैं सॉल्व कर सकता हूँ ना आप कर सकते हैं, लेकिन 2 मीठे बोल हो सकता है उसकी जिंदगी बदल। जो उसको अंधेरा दिख रहा है, हो सकता है आप गए कांधे पे हाथ रखने से उसको रोशनी की भी कॉलेज से गुजरी आप, तो आपको पता है स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। सफाई वाले हैं, जरूर है, उनका काम है, लेकिन अगर मैं
चिप्स का पैकेट पड़ा हुआ है उसको उठा के बिन में डाल दूं तो मैं घिस नहीं जाऊंगा। मेरी पोजीशन में कोई फर्क नहीं है। बिन में डालने से पहले जो था मैं वो बिन में डालने के बाद भी वो अपने घर में करता हूँ सफाई मैं नहीं करता। जब घर में करता हूँ तो पॉलिश तो मंदिर है। ज्ञान बढ़ता वहां को आपने साफ सुथरा रखा तो बड़ा काम। आप निकले आपने देखा बच्चों के लिए फर्नीचर अच्छा नहीं, खेल का सामान, लाइब्रेरी कंडीशन अच्छी, कंप्यूटर ठीक से काम नहीं करता। आपके प्रधानाचार्य जी जो है प्रिंसिपल साहब उनके 100 आंखें 100 हाथ 100 पैर नहीं, वो फिक्र करते हैं कॉलेज की बहुत हर चीज तो उनको नहीं पता। आपको जो समस्या दिख रही है उसको सॉल्व, वही बात है। सब मिलजुल कर अपनी अपनी जगह पर आगे बढ़ने का काम करेंगे तो आपका कॉलेज नंबर 1 होगा, नैक में भी, INRS में भी और रैंकिंग। तो चौथी क्वालिटी ये है, उनके 5वीं क्वालिटी ये है टू वर्क फॉर betterment of your institution। जिस कॉलेज में जिस डिपार्टमेंट में आप हैं उसमें 4 चांद कैसे लगे उसको और आगे कैसे बढ़े, ये फिक्र जैसे घर की फिक्र रहती है, घर में सब खुश रहे, किसी को कोई परेशानी ना हो, हर सामान मौजूद है, वही फिक्र अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में अगर हम पे आ जाए, ये जागरूकता आ जाए तो देश की भलाई। वरना तो आए ड्यूटी की बाइक पे बैठे चल दिए, चल रहा है काम, पहली को सैलरी मिली, इंक्रीमेंट भी मिल गया, पे कमीशन भी अब आ रहा है जी, PA भी बढ़ गया। तो जितने हम अपने राइट्स के बारे में चौकन्ना रहते हैं, दिमाग में वही चलता रहता है, पे कमीशन का फार्मूला कम आ रहा है, कितने परसेंट टैक्स कैसे कम हो सकता है, ये भी अच्छी बात है, कोई बुराई की बात नहीं। मेरी जो विनती है वो ये, जितने हम अपने राइट्स के बारे में सोचते हैं थोड़ा सा अपनी ड्यूटीज के बारे में सोचें। मैंने शुरू में डॉक्टर प्रियंका ने बताया, एक तो मैंने इंग्लैंड से PhD किया, फिर मैं वहाँ 20 साल विजिटिंग प्रोफेसर रहा। मुझे अलीगढ़ में बड़ी जिंदगी गुजरती,
एक फर्क कुछ लगता है इंग्लैंड में और देश में। इंग्लैंड वालों के पास ना पैसा ज्यादा है, ना वो सुपर इंटेलिजेंट, ना उनकी बिल्डिंग ऐसी है कि हम चकित रह जाए। मगर एक फर्क है, क्या है वो फर्क? वो अपना काम जो है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, चाहे सफाई वाला हो, सफाई वाले को जेनिटर कहते हैं, चाहे वो सफाई वाला हो, चाहे वाइस चांसलर हो, चाहे रजिस्ट्रार ऑफिस का आदमी, अकाउंट का, वो अपना काम पूजा की तरह करता है। हम पूजा के बारे में तो बड़े सेंसिटिव। अभी देखिए 6 बजा है और मुझको अभी से नमाज की फिक्र है कि 7:02 पे नमाज का टाइम है। नमाज के लिए मस्जिद की भी मुझे ख्याल है साफ जगह भी होना चाहिए, साफ कपड़े में। बहुत अच्छी बात है, पूजा नमाज का ध्यान करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन काम जो है वो भी पूजा ही की फॉर्म, चाहे वो अल्लाह हो या भगवान हो, वो इससे बड़ा खुश होगा कि हम अपनी ड्यूटी ठीक से। अब हमारी एज टीचर हमारी ड्यूटी है पढ़ाना, हमारी ड्यूटी है अपने स्टूडेंट की भलाई का ध्यान रखना, अपने इंस्टीट्यूशन की तरक्की करना, उसके अब टाइम बहुत कम रह गया है, 5-7 मिनट रह गए। 2 प्रॉब्लम्स लास्ट में मैं आपको बता दूँ, उसके बाद सोचिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम। एक चैलेंज जो बहुत बड़ा आपके सामने आने वाला है 5 साल में, 10 साल में, और देखिए कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी की भी गवर्नमेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं, न स्टेट में न सेंटर में, पॉलिटिकल इसका कोई एंगल नहीं। वो चैलेंज है फंडिंग का। कोई भी गवर्नमेंट अब 100% फंडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की नहीं कर सकती, इम्पॉसिबल। हमारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 1500 करोड़ रुपए हर साल मिलते, BHU को 1700 करोड़, DU को 2500 करोड़ मिलते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन in 5 years time, 10 years time, no government will be in a position to give this billions and billions and billions of money to education. सेल्फ फाइनेंसिंग कैसे होगी? बैंक से लोन, फीस बढ़ाइए, पेरेंट्स पे बोझ मत डालिए, स्टूडेंट से कहिए बैंक से जाके एजुकेशन लोन ले, जब जॉब में आ जाए लोन वापस करे। और ये मैं अपने दिल से बात नहीं कर रहा हूँ, ये मॉडल जो है 200 साल से इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है। ऑक्सफोर्ड को, कैम्ब्रिज को, हार्वर्ड को गवर्नमेंट फंडिंग, स्टूडेंट, अमेरिकन स्टूडेंट, इंडियन स्टूडेंट तो भूल जाइए,
वो तो बेचारा देते ही है फीस लाखों की। अमेरिकन स्टूडेंट भी लाखों रुपया फीस देता है। कहाँ से देता है? बैंक से लोन। माँ बाप को तंग नहीं करता। तो ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो नया मॉडल आ रहा है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान। एक आखिरी बात और कहता हूँ आपसे, वो भी थोड़ी तो ये वाली बात तो परेशानी की थी, दूसरी बात जो है वो दुखदायक है। वो क्या है? ध्यान से सुनिएगा डॉक्टर प्रियंका। हमारे देश की प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। आप ये समझिए कि मैं पता नहीं क्या कह रहा हूं। अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश की प्रॉब्लम नहीं, हमारे देश की प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनिए, अनएम्प्लॉयबल। हमारे लाखों छात्र छात्राएं हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, एमबीए की डिग्री हाथ में है, दो जुमले बोल नहीं सकते, दो जुमले लिख नहीं सकते, प्रॉब्लम सॉल्विंग की कोई एबिलिटी नहीं है प्रियंका जी, प्रॉब्लम जी सर। सॉल्विंग की कोई वो नहीं है, क्रिटिकल एबिलिटी नहीं है, एनालिसिस की कोई कैपेसिटी नहीं है। उनके मामा भी सिलेक्शन कमेटी में बैठ जाएं, उनको सिलेक्ट नहीं करें। ये हमारे सिस्टम की कमी है। ये लड़के लड़कियां 20 साल हमारे साथ रहते हैं, 15 साल 20 साल रहते हैं, अफसोस की बात ये है डिग्री लेके निकल जाते हैं और उनकी कॉम्पिटेंस, उनकी एबिलिटीज जीरो। एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम प्लानिंग की सुनिए। हर साल सुनती हैं आप, नीट का एग्जाम होता है, 18 लाख यंग लड़के लड़कियां बैठते हैं। ये 16 साल के, 17 साल के 18 लाख स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट्स कितनी है? 50,000। प्राइवेट में उसने अगर 50 लाख का इंतजाम कर लिया तो 50,000 और सीट मिल जाएंगी, 1 लाख डॉक्टर एडमिशन होगा। ये 17 लाख कहाँ जाएंगे? इनका क्या भविष्य? अगले साल फिर 17 लाख आ जाएंगे, अगले साल फिर 20 लाख आ जाएंगे। ये जो प्लानिंग की कमी है, ये जो 17 लाख जो बच गए, इनके भविष्य के लिए हमने क्या किया? वो 50,000 तो चलिए उनकी जिंदगी बन गई, इनका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 10, 20, 30,000 रुपए फीस पे एमबीबीएस में एडमिशन हो। ये बाकी 17 लाख 50,000 लड़के लड़कियां कहाँ गए? इनका फ्रस्ट्रेशन क्या है? इनके जो ड्रीम्स टूट रहे हैं, उसका कौन जिम्मेदार? जी, there is something wrong basically with planning, with infrastructure. लास्ट में ये बात कह दूं, इंग्लैंड में इसका सोल्यूशन ये है, वहां की हर शख्स डॉक्टर इंजीनियर नहीं हो सकता। उन्होंने ऑल्टरनेटिव कैरियर इतने अट्रैक्टिव, इतने रेस्पेक्टेबल, इतने रिम्यूनरेटिव बनाए हैं कि किसी का मेडिकल में एडमिशन नहीं भी होता, वो भी उतना ही खुश है जितना एमबीबीएस का स्टूडेंट खुश है। हमारी ये कमी है, हमने इस पर ध्यान नहीं दिया और हम इसको भुगत रहे हैं। ये जो अनरेस्ट होती है, जो प्रॉब्लम होती है, सोशल क्योस होता है, उसकी वजह ये लैक ऑफ प्लानिंग है। ओके, तो ये दो प्रॉब्लम एरियाज थे जो मैंने कहा मैं लास्ट में बता दूं। एक प्रॉब्लम एरिया फंडिंग का है और दूसरा अनएम्प्लॉयड, ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे ग्रेजुएट्स
who are good for nothing. Right. Now last 2 minutes are there. Very quickly, any question, any query, any comment, most welcome. बताएं. किसी भी Anything? पार्टिसिपेंट का कोई भी सवालात हो आप सर से प्लीज पूछ लीजिए. जी सर, मेरा एक प्रश्न मन में कौंध रहा है कि क्या बताएं. पॉपुलेशन इंक्रीजिंग एक समस्या नहीं हो सकती है? जी. इंडिया में इतना पॉपुलेशन जो इंक्रीमेंट हो रहा है, जो पॉपुलेशन का इनहेंस हो रहा है, बढ़ रहा है. देखिए, पॉपुलेशन जो है इट इज अ ग्रेट ब्लेसिंग. आज इंडिया की जो इतनी इकोनॉमिक वर्ल्ड में इतनी इम्पोर्टेंस है वो पॉपुलेशन ही की वजह से है कि आपका मिडिल क्लास जो है 1 बिलियन का मिडिल क्लास है, उस पर सबकी नजरें जमी हुई है, चाहे अमेरिका की हो चाहे वो यूरोप की हो. उनकी आंखें उनकी फटी रह जाती है. मतलब इंग्लैंड में जब बताता था कि हमारे स्टूडेंट जो है वो इतने मिलियन है, उनको तो यकीन नहीं आता. उनके तो 10 मिलियन भी नहीं होते, 1 मिलियन भी टीचर नहीं है. हमारे टीचर ही जो है वो 120 मिलियन है. तो ये पॉपुलेशन तो देखिए एक अपॉर्चुनिटी है नेचर की तरफ से हमको मिली है, उसका सही उपयोग करें तो उससे बड़ी तो कोई नेमत नहीं जी. इंग्लैंड का ये हाल मैं बता रहा हूँ, वहाँ के हॉस्पिटल भरे हुए हैं, स्कूल खाली है. क्यों? यंग लोग एक भी नहीं है और 80 और 90 इयर्स के फिजिकली चैलेंज लोग पॉपुलेशन का 60%. हम आप तो बहुत ही धनी है कि हमारी सड़कें भरी पड़ी है यंग आदमियों से. एक ट्रेन में आप चले जाइए, पब्लिक प्लेस में चले जाइए, 100 में से 80 लोग जो है यंग बॉयज एंड गर्ल्स. एंड यूथ इज द फोर्स दैट इज द सोर्स ऑफ लाइफ, इजंट इट? उसका सही उपयोग करने की जरूरत है. पॉपुलेशन को कर कोशिश करना चाहिए. पॉपुलेशन ऑफ कोर्स it should be under control, but let me repeat this point that this population is a blessing. मुझसे पूछिए आप, डॉक्टर प्रियंका, एक लाइन से स्कूल जो है प्राइमरी स्कूल अगर एशियन फैमिलीज ना हो तो इंग्लैंड के 100 स्कूलों में से 70 स्कूल बंद हो जाए. क्यों? पहली बात तो पॉपुलेशन है नहीं, दूसरे शादी लोग करते नहीं, शादी करते हैं तो बच्चे होते नहीं जी. If nobody wants to have children, they take it as a liability, isn't it? उससे उनकी इंडिपेंडेंस खत्म होती है. मी एंड माई लाइफ का कंसेप्ट जो है वो डिस्ट्रॉय होता है. They are building brilliant schools with all the facilities, no students. तो एशियंस थोड़े हमारे पटेल भाई हैं तो स्कूल चल रहे हैं. ओके, ये बताएं अखबार मतलूब साहब क्या फरमा रहे हैं आप? सर अस्सलाम वालेकुम. Sir, I completely agree with you, and I don't have a question. I just want to add something and, in a way, check if I am understanding what you are saying is right. So there are multiple ways of seeing things. As we say, there are two sides to a coin, a pro and a con. Similarly, they say in reference to what you are saying about the population, that the more the population, the more mouths to feed. But there is also another way of seeing it, that the more mouths to feed, the more hands to work. True. Okay. But let me clarify that we should follow the policy of moderation, balance. When I say that population is an opportunity, it doesn't mean that I am advocating population exclusion. इसके अपनी problems होती हैं, facilities नहीं है, infrastructure नहीं है. It has a great, it drains the resources, but
Actually, it is more of a problem of mismanagement. If we manage it well, it would be wonderful. Okay, thank you very much. I think it is 6 o'clock. uh, It was great at interacting with you. जी बताएं प्रियंका. बहुत 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 शुक्रिया सर। और ये आज का जो इतना इंफॉर्मेटिव और इनक्रेडिबली इंसाइटफुल लेक्चर रहा उसके लिए आपका बहुत बहुत पॉपुलेशन के बारे शुक्रिया। में मुझे बात लगता करनी है है, हम जनसंख्या जो बढ़ रही है देश की। Thank you. जी जी सर, मुझे लगता है यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट्स आज मौजूद रहे ये हम सभी की खुशकिस्मती थी कि आपको मौका आज हमें मिला और हम बहुत कुछ सीख करके जा रहे हैं। ये जो लेक्चर था सर ये इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग तो था ही साथ बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग था। आपने इतने अच्छे से मिसाल दे करके हमको इतने आसान ज़बान में हिंदुस्तानी ज़बान में जिस तरीके से आपने हमको समझाया, तो इतनी क्लैरिटी के साथ में आपने हमको समझाया। एकेडमिशियंस तो हम हैं ही सर, पर एकेडमिक लीडरशिप की तरफ हमें कैसे आगे बढ़ना है, तो वो सर बहुत ही बेहतरीन तरीके से मुझे लगता है आज के लेक्चर में हम सभी को सीखने का मौका मिला। और कम्युनिकेशन स्किल्स की सर आपने बात की, एम्पैथी की बात करी, फोकस की बात करी, इंस्टीट्यूशन के बेटरमेंट के लिए कैसे वर्क किया जाए उसकी बात करी, 2 परेशानियों की भी बात करी, फंडिंग और प्लानिंग की। तो सर बहुत इंसाइटफुल रहा आज का लेक्चर और उम्मीद है सर आज के लेक्चर से हम सभी पार्टिसिपेंट सीख करके अपने आप में ये सभी चीजें बदलाव लाएंगे, आगे बढ़ेंगे और नेशन बिल्डिंग की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि सर आपने अभी कहा कि पॉपुलेशन जो है वो एक ब्लेसिंग है, तो उस ब्लेसिंग को हम नेशन बिल्डिंग की तरफ एज एकेडमिशियन कैसे बना सकते हैं, उसकी हमें उसकी तरफ आगे बढ़ना है। तो बहुत बहुत Thank you. शुक्रिया सर, वी आर ट्रूली Okay. ग्रेटफुल टू यू फॉर योर टाइम एंड एफर्ट। Thank शुक्रिया you सर, very much, बहुत Dr. बहुत। प्रियंका. आपका भी लहजा बहुत शीरी है, तो थोड़ी सी आप उर्दू गजल आप पढ़िए तो और बेहतरीन हो जाएगा आपका जी. आपके जो है शीरीनी थी आपके लहजे में, तो थोड़ी उर्दू गजल पढ़िए और तो उसमें आपको और बेहतर हो जाएगा. ओके, बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वंडरफुल. थैंक यू सो Thank you. मच, बहुत बहुत थैंक यू सो शुक्रिया मच, सर, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सर। शुक्रिया सर। Thank you. Thank you.